Assalamu alaikum dear students. I welcome you to the course of Artificial Intelligence and lecture number 22. First of all, we will need to go through the previous lecture, what we have done until now, and then we will continue from there. So in the last lecture we did single field wildcard and we were looking why do we need it, what's the benefits of it. So if you remember, we did it because we want to not to be fixed with the facts and we want to have some values which we can change it and we can compare it later on. And then we were looking if we need to have multiple situations. For that we will need to use multiple rules, and then instead of that we were looking for multi-field wildcard. So to have a solution, not to use a lot of rules, not to make a lot of rules, we can use multi-field wildcard where we can have more fields where we can keep more data. And then we learn also that if we have single field variable and then if we have multi-field variable with the question mark and dollar sign, then how we will use it, and on the right hand side how we can use this variable. And then we also learned that all these variables we can use it anywhere in our right hand side. And also we learned that single and multi-field wildcards, what are the differences basically, and where shall we use it, in which situations, which one is better to use. We learned that multi-field wildcard use a lot of memory, and then we should be very careful while we are selecting this multi-field wildcard. Now we will move to today's lecture. We will learn another technique which is called diff template, and this is for defining some template for facts. If we want to put facts in a specific way, then how we will use it. There is a way and there is a syntax for it. We will learn it, and then we will also learn single slot or multi-slot templates where we can keep our templates and variables with the single slots if we want to keep only single values or if we want to keep multiple values, and then how you can use it. So we will learn all this today, inshallah. Diff template is similar to the struct definition in C. अगर हम देखते हैं C लैंग्वेज में जिस तरह हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्ट बनाते हैं, सेम उसी तरह हम यहाँ पर डिफ टेम्पलेट बना सकते हैं. ये मोर लेस उसी तरह ही है, उसी तरह की फंक्शनलिटी है इसकी. That is to diff template defines a group of related fields in a pattern similar to the way in which a C struct is a group of related data. हम सी के स्ट्रक्ट में करते क्या है, हम डेटा को कलेक्ट करते हैं एक स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर. एक ग्रुप के अंदर जो डेटा बिलोंग करता है तो वो हम एक जगह पर रख लेते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास है स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम रखना चाह रहे हैं, तो स्टूडेंट के रिकॉर्ड के लिए हमारे पास स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, then his class number or his registered to which courses, then also other exams and many other related things which are relates to the students, and we keep it in one struct, in one group. And then if we want to access it, then we can access it very easily with only one reference. तो यहाँ पर हम सेम उस तरह कर सकते हैं. डिफ टेम्पलेट इज़ अ लिस्ट ऑफ नेम्ड फील्ड कॉल्ड स्लॉट्स. हम करते क्या हैं डिफ टेम्पलेट में कि हम लिस्ट बनाते हैं फील्ड्स की और उसको कहते हैं हम स्लॉट्स. डिफ टेम्पलेट अलाउज एक्सेस बाय नेम रादर देन बाय स्पेसिफाइंग ऑर्डर ऑफ फील्ड्स. हम डिफ टेम्पलेट में क्या करते हैं, हम एक्सेस करते हैं हर जो स्लॉट है उसको बाय नेम एक्सेस करते हैं, ना कि उसकी लोकेशन की बेस पे. फॉर एग्जांपल, मैंने रखा हुआ है स्लॉट नंबर नेम उसका रखा हुआ है
फिर स्लॉट मैंने रखा हुआ है, एज रखा हुआ है, फिर स्लॉट रखा हुआ है, क्लास, इस तरह। अब मैं इसमें डेटा एंटर कर रहा हूँ तो मैं स्लॉट नेम ज़रूरी नहीं है कि मैं स्टार्ट में नेम दूँ, क्योंकि वहाँ पर मैंने नेम जो है वो पहले रखा हुआ था स्लॉट का। तो ऐसा नहीं होगा, हम अगर उसको अल्टरनेटिव भी कर लें, आगे पीछे भी कर लें, तो वो फिर भी एक्सेसिबल होंगी। डेफ टेम्पलेट कंट्रीब्यूट्स to a good style in expert system programs and is valuable tool of software engineering। यहाँ पर हम जब हम जाएंगे कोडिंग की तरफ तो इसमें हमारे पास काफ़ी सारे फ़ायदे आ जाएंगे अगर हम डेफ टेम्पलेट को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होगा डेटा को स्टोर करने के लिए और फिर उसको एक्सेस करने के लिए भी। अब उसके अंदर सिंगल स्लॉट क्या है, हम कैसे करेंगे इसको समझते हैं। अ स्लॉट इज अ नेम्ड सिंगल स्लॉट और मल्टी स्लॉट। अ सिंगल स्लॉट और सिंपली स्लॉट कंटेन्स एग्जैक्टली वन फील्ड while a multi slot contains 0 or more fields। हम इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स के अंदर। जब हम डेटा इसमें एंटर करते हैं एज अ फैक्ट, हम अगर फैक्ट्स को बनाते हैं तो हम या तो सिंगल स्लॉट में कर सकते हैं, और सिंगल स्लॉट का मतलब ये है कि वहाँ पर एक वैल्यू होगी और उसके अंदर कोई स्पेस नहीं होगी, उसके अंदर कोई और नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स नहीं होंगे। और अगर हम मल्टी स्लॉट लेते हैं कि हम उसमें मल्टी वैल्यूज़ रख सकें, तो उसमें फिर हमारे पास स्पेस भी आ सकती है और नॉन ज़ीरो वैल्यू भी आ सकती है। Any number of single or multi-slot may be used in a diff template. To write a slot, give the field name attribute followed by the field value। हम बनाने के लिए क्या करते हैं, हम सिंपली स्लॉट लिखते हैं और फिर स्लॉट का नाम बताते हैं और फिर उसके एट्रीब्यूट्स, उसके वैल्यूज़ बताते हैं कि कौन से वैल्यूज़ उसके अंदर आ सकते हैं, उसकी टाइप्स बताते हैं। Note that the multi-slot with one value is strictly not the same as single slot. As an analogy, think of cupboard, the multi-slot that may contains dishes. A cupboard with one dish is not the same as a dish single slot। हम यहाँ पर ये बताने की कोशिश हो रही है कि हम अगर सिंगल स्लॉट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते मल्टी स्लॉट के साथ, क्योंकि एक जगह पर मल्टी स्लॉट में हम बहुत सारे वैल्यूज़ रख सकते हैं, तो उसके अपने फ़ायदे और नुकसानात हैं। और अगर हम सिंगल स्लॉट यूज़ करते हैं तो उसके अपने फ़ायदे और नुकसानात हैं, क्योंकि जब हम मल्टी स्लॉट यूज़ करेंगे तो वो मेमोरी भी ज़्यादा लेगी और उसमें उसको एक्सेस करना और फिर उसको रिप्रेजेंट करना वो भी थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। और साथ में अगर सिंगल स्लॉट है तो हमें पता है कि वहाँ वैल्यू एक ही आ रही है, इस वजह से वो बहुत इजीली हैंडल हो सकेगा और वो मेमोरी भी कम लेगा। However, the value of a single slot or variable may match a multi-slot or multi-slot variable that has one field। हम इसको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। अगर मल्टी स्लॉट और सिंगल स्लॉट वैल्यूज़ हैं तो वो आपस में हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं। As an example of a diff template relation, consider the attributes of business who might be considered good for prospect। अब हम यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल ले रहे हैं। अगर हम कोई बिजनेस के लिए कुछ पार्टनर्स देख रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि उनके कुछ वैल्यूज हम रखना चाह रहे हैं अपने पास या स्टोर करना चाह रहे हैं एज अ स्ट्रक्चर, एज अ डेटा सेट, एज अ ग्रुप, तो उनके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हम एक देखेंगे उसके लिए हमें कोई नेम चाहिए होगा, तो वो नाम कुछ भी हो सकता है। फिर एसेट्स, उनके पास कितने एसेट्स हैं और फिर उनकी एज, बिज़नेस की एज क्या है, उन्होंने कितने अरसे में क्या बिज़नेस किया हुआ है। हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, स्टूडेंट की ले सकते हैं, हम किसी बिज़नेस की ले सकते हैं, ग्रोसरी स्टोर की ले सकते हैं, डिफरेंट किस्म के एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। अब हम सिंपल ये समझने के लिए कि हम कैसे बनाते हैं स्लॉट्स, अब सिर्फ हम वो सीखेंगे। तो हम करते क्या हैं, नॉर्मली हम
जो कीवर्ड है diff टेम्पलेट बताते हैं, और फिर उसके बाद हम उस टेम्पलेट का नाम बताते हैं कि उस टेम्पलेट का नाम क्या होगा। तो हमने यहाँ पर टेम्पलेट का नाम रखा। जिस तरह हम रूल बनाते हैं तो रूल में भी हम डिफाइन रूल करते हैं और फिर उसका नाम बताते हैं, तो यहाँ पर भी सेम इसी तरह ही होगा, हम वो कोई नाम बताते हैं। फिर वर्चुअल हम करते क्या है कि हमारे पास कोई कमेंट्स अगर हम रखना चाह रहे हैं, जिस तरह हम रूल में भी रख सकते थे, सेम उस तरह यहाँ पर भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर सिंपल ये बताया हुआ कि ये कोई वाइटल इंफॉर्मेशन है, हम कोई इंफॉर्मेशन रखना चाह रहे हैं। स्लॉट नेम, स्लॉट कीवर्ड है, और नेम हम ये बता रहे हैं कि जो स्लॉट में बना रहा हूँ उसका नाम क्या होगा। तो मैंने उसको बताया कि नेम, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया था कि हमारे पास क्या चाहिए होगा, नेम चाहिए होंगे, एसेट्स चाहिए होंगे और एज चाहिए होगा, और ये उनके वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्लॉट नेम, तो उसकी टाइप पर बतानी होगी, टाइप कौन से किस्म का डेटा मैं उसके अंदर एंटर कर सकता हूँ। स्ट्रिंग कैपिटल में है और ये कीवर्ड है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये भी कीवर्ड है क्वेश्चन मार्क के साथ, ये क्योंकि वेरिएबल के तौर पर हम ले रहे होंगे जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो ये हम और भी डिटेल में आगे जाकर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। स्लॉट एसेट्स हैं, ये स्लॉट कीवर्ड है और एसेट्स फिर मेरे पास उसकी जो मैंने नाम रखा हुआ है यहाँ पर स्लॉट का, तो वो है। इसमें कौन से वैल्यूज़ हम एंटर कर सकते हैं, सिंबल कर सकते हैं, और इसका मतलब क्या है वो हम बाद में डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ॉल्ट वैल्यू अब हम देना चाह रहे हैं, यहाँ पर भी डिफ़ॉल्ट है, इधर भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि अगर मैं कोई वैल्यू यहाँ पर एंटर नहीं करता, मैं सिंपल फॉर एग्जांपल नेम एंटर करता हूँ और बाकी वैल्यूज़ एंटर नहीं करता, तो वो स्लॉट बाय डिफ़ॉल्ट उसकी कोई वैल्यू आ जाए, वो वहाँ पर सेव हो जाए। उसके लिए मैंने यहाँ पर बता दिया है कि अगर कोई वैल्यू भी ना हो तो मैं फिर वहाँ पर एंटर करूँगा रिच, डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी। स्लॉट एज है, सेम इस तरह स्लॉट कीवर्ड है और एज उसका नाम है, और टाइप उसमें कोई नंबर आ सकता है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी 80 होगी। अब हम अगर इसको सिंपली रन करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो किस तरह होगा, हम अब जाते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो हमने क्लिप्स की शेल ओपन कर लिया। अब हम करेंगे क्या कि हम सिंपली ये टेम्पलेट बनाएंगे फैक्ट्स के लिए। हम इसके लिए अब हमें diff टेम्पलेट, फिर हमें कोई नाम देना होगा। इसके बाद स्लॉट, और फिर स्लॉट का नाम देना होगा कि क्या होगा इसका। मैंने इसको बताया कि नेम, स्लॉट नेम होगा। फिर मुझे यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं लगानी, क्योंकि अभी मैं स्लॉट नेम के अंदर ही हूँ, और मैंने ये बताना होगा कि इसके टाइप्स क्या हैं। तो टाइप, और इसको मैंने कैपिटल रखना है, टाइप मैंने बताया स्ट्रिंग, और अब इसके बाद मैं बताऊंगा कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी। ये हमारे पास वैल्यू है जो एक्चुअली स्लॉट में अगर हम स्ट्रिंग कोई एंटर नहीं भी करते, तो ये स्पेशल वैल्यू है, ये स्पेशल कीवर्ड है जो वहाँ पर कुछ भी होगा उसको वो एज अ वेरिएबल ले लेगा और उसको फिर प्रिंट करने में साथ हमारे हेल्प करेगा। अब मैं इसके बाद मैं स्लॉट को क्लोज कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक स्लॉट हो गई। इसमें मैंने सिंपली बताया कि मुझे कौन कौन से
कौन सा स्लॉट चाहिए और उसके टाइप्स क्या होंगे। सेकंड मुझे चाहिए होगा नेम के बाद मैंने बताया कि मुझे चाहिए सिंपल उसकी एसेट्स। टाइप उसकी मैं बताऊंगा। सिंबल, और यहाँ पर मैं कोई डिफ़ॉल्ट वेरिएबल डिफ़ॉल्ट वैल्यू दूंगा। यहाँ पर मैं फ़िलहाल दे रहा हूँ कि रिच। अब ये मेरे पास दूसरा स्लॉट भी बन गया। मैं इंटर करके यहाँ पर, आपको पता है कि हम अगर जितने भी हमारे पास कैरेज रिटर्न होंगे उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो एक ही काउंट होगा लेकिन हमें यहाँ विजुलाइजिंग में आसानी होगी, हमें सारा नज़र आ रहा होगा। इस वजह से ये बेहतर है कि हम इसको ऑर्गेनाइज तरीके से करें, हमें जो विजुअली सही आसानी से समझ आ सके। अब हमने किया यहाँ पर एज, और साथ में हम यहाँ पर उसकी टाइप बताएंगे नंबर, और फिर हम यहाँ पर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू बताएंगे। अब इधर मैंने कंप्लीट किया इस स्लॉट को, और अब मैं कंप्लीट करूँगा पूरे डिफ टेम्पलेट को, तो मुझे एक और ब्रैकेट लगानी होगी। तो ये अब मेरे पास एक टेम्पलेट बन गया। मैं एंटर करता हूँ तो मुझे कोई एरर नहीं आया, मतलब ये कि ये जो टेम्पलेट मैंने बनाया है ये बिल्कुल ठीक है। मैं फैक्ट विंडो और साथ में मैं एजेंडा ओपन करता हूँ। अब मैं करता ये हूँ, थोड़ा सा हम जाते हैं वापस प्रेजेंटेशन की तरफ। हमने ये सारे काम कर लिए, अब हम नेक्स्ट करते क्या हैं, थोड़ी सी इसकी डिफिनीशंस देखते हैं। In this example, the components of def templates are structured as def template relation name, हमें names बताए हमने, attributes called fields, और फिर हमें attributes बताए हैं जो actually fields हैं उसके अंदर कौन कौन से values हम उसके अंदर input कर सकते हैं। The field type which can be any one of the allowed type, हमारे पास कोई भी value फील्ड के अंदर हम एंटर कर सकते हैं अगर तो वो उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर तो वो सिंबल हैं तो वो सिंबल होंगे, वहाँ पर एंटर हो सकते हैं। अगर स्ट्रिंग है या नंबर है तो सिर्फ यही एंटर होंगे। डिफ़ॉल्ट फॉर द फील्ड वैल्यू, अगर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो वहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। अब हम करेंगे क्या, एसर्ट प्रोस्पेक्ट करेंगे। हम सिंपल प्रोस्पेक्ट को एसर्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है हमारे पास। प्रोस्पेक्ट क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमारा जो टेम्पलेट है इसका नाम हमने ये रखा हुआ है अब मैंने ये एंटर किया तो आप देखेंगे कि कौन कौन से वैल्यूज आई। प्रोस्पेक्ट नेम, दो कोटेशंस आई साथ में, फिर एसेट्स रिच और एज 80 आ गई। क्यों इस तरह हुआ? एज यू कैन सी Eclipse हैज इंसर्टेड द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द नल स्ट्रिंग। दो कोटेशन मार्क्स हैं फॉर द नेम फील्ड सिंस that is the default for string. Likewise, the assets and age default were also inserted by Eclipse. Different types have different default symbols, such as the null string for string, the quotations for string, the integer 0 for integer, the float 0.0 for float, and so on. The variable drive keyword select the appropriate type of the constraint for that slot
दैट इज़ एक्चुअली वो क्या होगा, द नल स्ट्रिंग। यहाँ पर हमने जब कोई भी वैल्यू नहीं दी होगी तो वो नल स्ट्रिंग आ रहा होगा। हम यहाँ पर सिंपल ये बता रहे हैं कि जो भी वैल्यू हमारे पास यहाँ इंटर हुई है वो एक्चुअली डिफ़ॉल्ट से आई है। हमने यहाँ पर बताया था कि नेम के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू आएगी और वो ड्राइव, अगर कोई भी वैल्यू नहीं है तो वो ड्राइव होगी। ड्राइव एक्चुअली क्या है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, वेरिएबल है, जो एक्चुअली करता क्या है कि जो भी इस नेम के अंदर होगा एज इस फील्ड के अंदर होगा उसको वो प्रिंट कर देगा, वो उसको वहाँ पर रख देगा। अब हमें ये पता है कि नॉर्मली अगर कोई नॉन प्रिंटेबल वैल्यू है तो वो नहीं हो सकती, लेकिन इस कीवर्ड की वजह से ये पॉसिबल हो जाता है। फिर हमारे पास एसेट्स हैं, तो उसमें हमने सिंबल बताए हुए हैं कि कौन कौन से सिंबल्स, तो वो भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वहाँ पर हम क्या दे सकते हैं। मतलब ये कि मैं वहाँ पर रिच, पुअर, मीडियोकर, इस तरह के डिफरेंट किस्म के सिंबल्स बना सकता हूँ, वो हम देखेंगे, सीखेंगे, और सिर्फ उन्हीं में से कोई एक सेलेक्ट कर सकता हूँ। सेम इसी तरह हमारे पास स्लॉट एज है जिसमें हमने नंबर इंटर कर सकते हैं, और वो नंबर जो डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पर दिया होता है 80, अब आप देखें 80 आया हुआ है। तो फील्ड जो हम दे रहे हैं, स्लॉट नेम जो दे रहे हैं, वो एग्जैक्टली नेम भी साथ आ रहा है और साथ में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो भी आ रहा है। यू कैन एक्सप्लिसिटली सेट द फील्ड वैल्यू एज द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोन। हम कर क्या सकते हैं कि अब हम अपनी मर्जी के वैल्यूज़ इंटर कर सकते हैं। प्रोस्पेक्ट एज 99 ने टॉपिक कुछ भी हम इंटर करना चाहें तो अब हम करेंगे क्या, हमें सिंपल इंसर्ट करना है। अब हम बताएंगे इसको कि कौन से टेम्पलेट को फॉलो करते हुए अब मुझे यहाँ पर बताना होगा। मैंने अब जो हमने एंड पे वैल्यू रखनी थी वो मैंने पहले रखी, प्रोस्पेक्ट एज और अब मैं इसको कंप्लीट करके एंटर करता हूँ। अब मैंने जब एंटर किया तो अब आप देखें हमारे पास नेम आ गया अली, एसेट्स रिच ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ हुई है, और एज अब चेंज हो गया 90, जो क्योंकि हमने एंटर किया तो वो और राइट हो जाएगा। जो भी हम वैल्यू एंटर करेंगे तो डिफ़ॉल्ट फिर यूज़ नहीं हो रहा होगा, वो और राइट हो जाएगा जो भी हम वैल्यूज़ इसके अंदर चेंज करेंगे। अब हम अगर साथ में हम ये रखना चाहते हैं कि हम जो सिंबल्स हम दे रहे हैं वो भी दे दें। अब मैंने इंटर किया तो एसेट्स पुअर साथ आ गया, उसके अंदर हमने ये भी एंटर कर दिया तो वो जो रिच था वो और राइट होकर पुअर हो गया। आसिफ नेम नया आ गया और एज, और अगर तो वो सेम है तो सेम आ जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि हम अब ये टेम्पलेट हमने बनाया, इसके अंदर हम वैल्यूज़ इंटर कर सकते हैं बड़ी इजीली, और हमें ये वैल्यूज़ हम यूज़र से ले सकते हैं और उसको बता भी सकते हैं कि मेरे पास स्लॉट कौन से हैं और आपने कौन सी वैल्यूज़ इंटर करनी है। अब हम जाते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। अब हम देखते हैं कि हम कोई नया रूल बनाना चाहें, डिफ रूल बिजनेस कैंडिडेट के नाम से, कि हमारे पास कोई बिजनेस हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें कोई कैंडिडेट्स चाहिए और उनकी इन्फॉर्मेशन हम रखना चाह रहे हैं। तो प्रोस्पेक्ट क्योंकि हमारे पास टेम्पलेट है उसके अंदर हम वैल्यूज़ ले लें
और फिर हम उसको सिंपली प्रिंट आउट कर दें कि जो वैल्यूज़ हैं उनको हम विजुअलाइज करना चाहते हैं। हम सिंपली क्या करेंगे, अब एक रूल बनाएंगे। डिफ रूल हम बना रहे हैं, इसका हम कोई नाम रखेंगे। बिजनेस अब मैंने क्या करना है, उसकी इफ कंडीशन बनानी है। इफ कंडीशन में क्या होगा, प्रोस्पेक्ट मेरे पास कोई नेम होगा और उसको मैं नेम जो है वो स्लॉट होगी, और मैं साथ में उसके, क्योंकि मेरे पास जो फैक्ट्स हैं वो किस फॉर्म में है, वो आ रहे हैं नेम, साथ आ रहा है उसका स्लॉट का नाम, और फिर साथ में उसकी जो फील्ड है, जो वैल्यू है वो आ रही है। तो मैं रख लूँगा किसी वेरिएबल के अंदर मैं एन ए रखता हूँ ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो स्लॉट के अंदर और उसकी वैल्यू के अंदर। अब मैं इसको सिंपली, एक वैल्यू मेरे पास आ गई, तब मैं दूसरा ले रहा हूँ। एसेट, और उसमें अब मैं क्या करूँगा, मैं साथ में वो भी कोई वेरिएबल मैंने रखा जिसमें वो वैल्यू आ रही होगी एसेट्स की, और फिर साथ जो तीसरा है एज। अब ये मेरे पास एक इफ कंडीशन पूरी हो जाएगी, और इसके बाद मुझे चाहिए होगा देन में मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसको प्रिंट करूँगा। अब मैं जो वेरिएबल मेरे पास वहाँ से आ रहा होगा उसको ले लूँगा, और साथ में अब मुझे एसेट्स चाहिए होंगे, तो उसके लिए मुझे प्रिंटेबल कोई वैल्यू चाहिए होंगी। मैंने वेरिएबल रख दिया साथ। और साथ मैं इसको अब कंप्लीट करता हूँ।
तो हमने रिब्स रूल बना लिया। अब हमने सिंपल एंटर किया तो हमारे पास 3 रूल एक्टिवेट हो गए, 3 फैक्ट्स की वजह से एक्टिवेट हो गए। अब तीनों फैक्ट्स क्या हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास फैक्ट्स अवेलेबल थे तो इस वजह से हमने जब रूल बनाया तो वो एक्टिवेट हो गए। अब एक चीज़ आपने जहन में रखना है कि जब भी हम रूल बना रहे होंगे कोई फैक्ट्स के लिए प्रोस्पेक्ट यूज़ करते हुए, तो वो टेम्पलेट उसका होना चाहिए पहले से। टेम्पलेट हम पहले बनाएंगे और फिर बाद में रूल बनाएंगे। तो अगर उसके फैक्ट्स हैं या नहीं हैं वो कोई असर नहीं करेगा, लेकिन टेम्पलेट हमें बनाना होगा पहले से, ताकि जब हम रूल बनाएंगे तो रूल बनाते वक्त आपके सिस्टम को पता होना चाहिए, आपके क्लिप्स को पता होना चाहिए कि इस तरह के टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं जिसमें ये डेटा आ सकता है, तो वो फिर कंपैरिजन के लिए उसको आसानी होगी। अब हम इसको सिंपल क्या करेंगे, रन करेंगे। हम रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी प्रोस्पेक्ट की, एसेट्स रिच एज बिजनेस, उसका प्रोस्पेक्ट आ जाएगा। उसमें क्योंकि हमारे पास एक में नाम नहीं था इस वजह से नाम नहीं आया, और जिसमें नाम है तो नाम आ गया उसका। प्रोस्पेक्ट अली आ गया, रिच बिजनेस, एज ऑफ बिजनेस आ गया उसका, और फिर साथ में इस तरह दूसरा जो तीसरा था हमारे पास फैक्ट वो भी आ गया। तो हम इसको सिंपल इस तरह यूज़ कर सकते हैं। नोट दैट द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ रिच वाज यूज्ड फॉर अली सिंस द एसेट्स फील्ड वाज नॉट स्पेसिफाइड इन द एसर्ट कमांड। हमें ये पता है कि हमने कुछ फील्ड्स में स्पेसिफाई नहीं किया था, तो जहाँ हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे वहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। If the asset field is given specific value such as poor, the specified value for asset of poor override the default value of rich as shown in the following example। हमने simply देखा कि अगर हम वैल्यू को चेंज करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ओवरराइड कर देगा। अब हम एक और चीज़ देखना चाहते हैं कि अगर हम कोई फिक्स वैल्यू वहाँ पर रखते हैं और उसके साथ कंपेयर करना चाहते हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के फैक्ट्स पड़े हुए हैं, लेकिन हम वो वाले फैक्ट्स या हमें वो कैंडिडेट्स चाहिए जिनके कोई स्पेसिफिक फील्ड वैल्यू हो। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल रूल में चेंजेस करेंगे। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हम कोई स्पेसिफिक कैंडिडेट्स हैं उनके साथ बिजनेस एज ए बिजनेस कैंडिडेट उनको नहीं रखना चाह रहे, तो हम करेंगे क्या, एक और रूल बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें पिछले एक रूल्स को हम कुछ रूल्स को वो अनडिफाइन कर देंगे। मतलब हमारे पास ये की वर्ड है अनडिफाइंड रूल, और फिर रूल का नाम हम बताते हैं। तो जब हम ये करेंगे तो उससे वो जो रूल है वो अनडिफाइन हो जाएगा। जब हम नया रूल बनाएंगे उसमें हम करेंगे क्या, हम स्पेसिफिक बता देंगे कि मुझे ये वाली वैल्यू एग्जैक्टली इस तरह चाहिए। तो अगर वो होगी तो उसके अगेंस्ट में क्या करूँगा, मैं उसको भी चेक करता हूँ कि सिंपली अनडिफाइन करते हैं रूल को। जब हम अनडिफाइन करेंगे तो हमें उसका नाम चाहिए होगा। उसका नाम क्या था रूल का, बिजनेस। अब इससे हुआ ये कि रूल सिंपली अनडिफाइन हो गया, और हम अब करेंगे क्या, नया रूल बनाते हैं। जो हमारे पास ऑलरेडी है हम उसी को यूज़ करते हैं और उसके अंदर चेंजेस करते हैं। और एसेट्स में मैं जाकर वहाँ पर सिंपल ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास फिक्स वैल्यू में रखना चाह रहा हूँ, और वो फिक्स वैल्यू है कि मैं सिर्फ उस कैंडिडेट्स को स्पेसिफाई करना चाह रहा हूँ जिसकी वैल्यू पुअर है। बाकी जो भी आ रहा हो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन
हमें एग्जैक्टली ये वाली वैल्यू चाहिए, हम यहाँ पर बताते हैं। ये रूल हमने बनाया नया, अब हम करेंगे क्या, प्रिंट आउट ही। यहाँ पर हम बताते हैं, गुड बाय करते हैं इसको। अब मैंने नया रूल बनाया, इसमें मैंने क्या किया कि सिंपली ये बताया कि जो मेरे पास आ रहे हैं फैक्ट्स, उनमें मुझे सिर्फ वो चाहिए जो पुअर है। मैं एंटर किया। अब आप देखें डिफरेंस दोनों में कि पिछले रूल में तीनों फैक्ट्स की वजह से रूल एक्टिवेट हुआ था, यहाँ पर अब सिंपल एक फैक्ट की वजह से रूल एक्टिवेट हो रहा है। और वो किस फैक्ट की वजह से हो रहा है, जो हमारे पास पहला फैक्ट है जिसमें एसेट्स पुअर हैं। तो जो वो पुअर वाले हैं सिर्फ वो उसने एक्टिवेट किया रूल को, क्योंकि हमने यहाँ पर एसेट्स में बता दिया था कि मुझे वो वाली वैल्यू, वो वाला कंडीशन चाहिए इसमें, बाकी दोनों वेरिएबल कुछ भी हों लेकिन एसेट्स मेरे पास पुअर आ रहा हो, तो फिर मुझे ये रूल एक्टिवेट करवाना था। अब मैं इसको सिंपली रन करूंगा तो क्या होगा, रन करने से आ गया मेरे पास कि डियर आसिफ गुड बाय, इनको गुड बाय कर दिया क्योंकि इनके जो बिजनेस एसेट्स थे वो पुअर थे, उनकी कंडीशंस अच्छी नहीं थी। इस वजह से वो एज अ कैंडिडेट या मीटिंग या उसके साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रोस्पेक्ट्स अच्छे नहीं थे। तो हमने ये सीखा कि अगर हम कोई टेम्पलेट के अंदर कोई फिक्स वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं तो वो हम कर सकते हैं, और टेम्पलेट के कुछ वैल्यूज़ हम डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं, और हम ये भी कर सकते हैं कि हम कोई फिक्स वैल्यूज़ जब हम एंटर करना चाहें तो उसके अगेंस्ट क्या होगा वो हम चेक कर सकते हैं। एंड वी विल से दैट वी कैन नाउ हैव मल्टी स्लॉट्स, वी कैन पुट मल्टी फील्ड्स वैल्यूज़. Note that only single field were used for a pattern in the example so far. That is, the field value for name, assets and age were all single values. In some type of rule, you may want multiple fields. हमें शायद कुछ ऐसी situations हो जहाँ पर हम multiple values enter करना चाहें fields के लिए, क्योंकि हाँ यहाँ पर हर एक fix थी, तो उस situation में हम क्या करेंगे, हम multi fields use करेंगे. Diff templates allows the use of multiple values in a multi-slot. As an example, the multi-slot, suppose that you want to treat the prospect as multiple fields. This would provide more flexibility in processing prospect, since any part of the name could be pattern matched. अब हम ये चाह रहे हैं कि हम फॉर एग्जांपल हम नाम के साथ कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखना चाह रहे हैं, या हम नाम के, क्योंकि नेम जो है वो एक नहीं मल्टीपल होते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम हो सकता है, तो उसके लिए हम अगर मल्टी स्लॉट वैल्यू रखना चाहते हैं तो वो कैसे होगी. शोन फॉलोइंग इज द डिफ टेम्पलेट डिफिनीशन यूजिंग मल्टी स्लॉट एंड द रिवाइज्ड रूल टू पैटर्न मैच ऑन मल्टीपल फील्ड्स. Note that the multi-slot pattern $sign question mark name is now used to match all the fields that make up the name. For convenience, a defects is also given. हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम simply इसमें diff template सेम उसी तरह अगर हम बनाएंगे, हम अब करेंगे इसमें क्या, multi-slot बता देंगे और साथ में हम
और ये बताएंगे कि इसमें कौन कौन से वैल्यूज़ हमारे पास आ सकती हैं, और साथ हम नई चीज़ जो मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि सिंबल्स हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, तो वो कीवर्ड है अलाउड सिंबल, हम उसमें बता देते हैं कि हमें कौन कौन से वैल्यूज़ हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो वो हम बताएंगे। हम इसके लिए अब करेंगे क्या, सिंपल जाते हैं कोडिंग की तरफ। अब मैं सेम उसी रूल को ले रहा हूँ, मैं जो टेम्पलेट मैंने बनाया था उसकी तरफ जाऊंगा और टेम्पलेट हम लेकर आएंगे यहाँ पर। अब मेरे पास टेम्पलेट आ गया। अब अगर तो मैंने यूज़ करना है मल्टी स्लॉट, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर मैं बता दूंगा कि ये मल्टी स्लॉट हो गया। मल्टी स्लॉट नेम के लिए होगा और टाइप उसकी स्ट्रिंग हो सकती है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसके सेम इसी तरह होगी। अब एसेट्स भी इसी तरह है, लेकिन इसके अंदर मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि उसके जो सिंबल्स होंगे वो कौन कौन से होंगे। अलाउड सिंबल्स, एक स्पेस के साथ हम सारे सिंबल्स दे देंगे। अब सिंपली मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब मैं करूँगा क्या कि मैं इसको एंटर करता हूँ, तो हमारे पास कैन नॉट रीडिफाइन टेबलेट प्रोस्पेक्ट व्हाइल इट इज़ इन यूज़। हम क्योंकि हमने एक मरतबा इसको बनाया हुआ है, तो हम इसको दोबारा इसमें चेंजेस इस वजह से नहीं कर सकते कि इसका नाम सेम है। अब हम करेंगे क्या, इसके नाम को हम चेंज कर देते हैं ताकि सेम ना रहे। हम इसका एक और हल भी है, और हल ये है कि अगर हम सिंपली इसको रीसेट कर दें, तो प्रोस्पेक्ट 2 कर देते हैं हम सिंपली इसको, तो ये मेरे पास अब नया बन जाएगा। अब ये हमारे पास सेकंड टेम्पलेट बन गया। अब हम करेंगे ये कि इसके अंदर हम कोई वैल्यूज़ इंटर करते हैं, और उसके लिए हम सिंपली करेंगे क्या कि अब क्योंकि हमने पहले हम यहाँ पर जो वैल्यूज़ इंटर कर रहे थे वो एज अ सिंगल स्लॉट आ रहे थे, तो वहाँ हम सिंपल वेरिएबल यूज़ कर रहे थे। अब अगर हम रूल बनाएंगे तो उसमें हम करेंगे क्या कि हम मल्टी स्लॉट के लिए जिस तरह हम मल्टी फील्ड वाइल्ड कार्ड यूज़ कर रहे थे, सेम उसी तरह हम यहाँ पर भी करेंगे। तो अब हम रूल अगर बनाते हैं तो कैसे होगा, हम रूल बनाएंगे और फिर उसके बाद असर्ट करेंगे वैल्यूज़। बल्कि वो भी हमारे पास रिकॉर्ड में रूल पड़ा होगा, हम वही उसी में चेंजेस करते हैं। R2 रूल 2 के नाम से मैंने इसको सिंपल कर दिया, और यहाँ पर मैं $साइन लगा दूंगा ताकि वो मल्टी फील्ड की वैल्यू हो जाए। और एसेट्स को भी मैं वेरिएबल रख देता हूँ। तो रूल में मैंने ये वैल्यू भी रख दी, एसेट्स की भी वेरिएबल रख दी, और अब मैं इसको अगर यूज़ कर रहा हूँ तो ये हम आपको पता है कि हम इसको एज अ वेरिएबल लेंगे। अच्छा, क्योंकि हमने जो प्रोस्पेक्ट के नाम से बनाया था उसमें हमारे पास सिंगल फील्ड वैल्यू थी। अब अगर आपको याद हो, हमने जो ये नया टेम्पलेट बनाया था इसको हमने टेम्पलेट 2 के नाम से हमने बनाया, तो इस वजह से अब हमें वहाँ रूल जो हम बता रहे हैं, जो इफ़ कंडीशन है, वहाँ पर हम सिंपली यहाँ इसको 2 कर देते हैं। अब हमने एंटर किया तो कोई एरर नहीं आया, तो इसका मतलब ये कि ठीक है। अब मैं सिंपली
एसर्ट करूँगा वैल्यूज़। अब अगर मैंने कोई बाकी वैल्यू नहीं भी दी तो उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हमने रूल बना लिया। रूल में हमने क्या किया कि हमने सिंपली रूल का नाम रखा रूल 1, नेम वहाँ मल्टी स्लॉट हो गया, और एसेट्स उसमें कोई वेरिएबल जो भी आ रहा होगा वहाँ, और एज उसकी कोई भी मंथ्स के लिहाज से होगा। फिर हमने सिंपली क्या करना है, उसको प्रिंट आउट करना है। प्रिंट आउट के लिए आपको पता है कि जब भी हमारे पास मल्टी स्लॉट होगा हम उसको एज ए सिंगल वेरिएबल ले रहे होंगे और उसको हम सिंपली प्रिंट कर देंगे। अब हम करेंगे क्या, इसके लिए हम एसर्ट करेंगे कोई वैल्यू। अब हम एसर्ट कर रहे हैं सिंपल। मैंने यहाँ पर बताया कि मुझे चाहिए एसर्ट प्रोस्पेक्ट, जो कि हमारे टेम्पलेट का नाम है, और सिंपली नेम अली बता दिया। और क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये मल्टी स्लॉट है तो इसमें मैं ज़्यादा वैल्यूज़ दे सकता हूँ। और फिर एसेट्स रिच और एज मैंने ये बता दी। तो मैं अब सिंपली इसको इंटर करता हूँ। जब मैंने इंटर किया तो मेरे पास रूल एक्टिवेट हो गया R1, और रीज़न इसकी क्या है क्योंकि जो फैक्ट है वो मेरे पास सिंपल आ रहा है। मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास प्रोस्पेक्ट आ गया अली वंडरफुल। उसकी वजह क्या है कि मैंने जो रूल बनाया था उसमें सिंपली मैंने नाम को प्रिंट किया था। यहाँ पर ये कमेंट है नोट वेरिएबल नेम। हमने क्योंकि सिंपल बताया हुआ है नेम का, तो सिर्फ नेम जो है वो आ रहा है हमारे पास एज अ प्रिंट आउट, और बाकी सारा हमने किया ही नहीं है, वहाँ बताया नहीं है कि प्रिंट करें। तो इस वजह से, क्योंकि यहाँ हमारे पास कमेंट है और ये बाकी सारा कमेंट के अंदर है, तो जो भी कमेंट में होगा वो प्रिंट नहीं होगा। आपको पता है कि हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं कमेंट्स के लिए। तो हमने सिंपल क्या किया, मल्टी फील्ड वेरिएबल यूज़ किया और उसको हमने प्रिंट कर दिया बाहर रूल में, उसके राइट हैंड साइड में हम सिंपली दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं कि एक हमारे पास ज़्यादा वैल्यूज़ आ रहे हों, अगर तो उसमें स्पेस है, अगर तो उसमें नॉन प्रिंटेबल वैल्यूज़ हैं तो भी वो आ सकते हैं, और जो सिंगल स्लॉट है उसमें एक वैल्यू होगी। तो अब हम लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हमने आज दो चीज़ें देखी, सिंपल टेम्पलेट किस तरह बनाते हैं, उसमें सिंगल स्लॉट्स किस तरह बनाते हैं, और अगर हम फिक्स वैल्यूज़ रखना चाह रहे हैं और चेक करना चाहते हैं फिर उसके साथ, जिस तरह पुअर की एग्जांपल हमने की, तो वो किस तरह करते हैं। सिंपल उसका टेम्पलेट है और सिंटैक्स है। फिर हमने मल्टी फील्ड देखे कि अगर हम मल्टी फील्ड के साथ कोई वैल्यूज़ रखना चाहते हैं, जो भी हमारा टेम्पलेट है उसमें हम मल्टी वेरिएबल्स रखना चाहते हैं, क्योंकि कुछ सिचुएशंस होते हैं जिसमें एक स्लॉट नहीं होती, उसमें वैल्यूज़ ज़्यादा होते हैं, तो हम वहाँ पर ज़्यादा वैल्यूज़ रख लेंगे। लेकिन ये है कि मल्टी स्लॉट में जो डेटा है वो ज़्यादा मेमोरी यूटिलाइज़ करता है। इस वजह से हमें ये एहतियात करना होगा कि जहाँ पर सिंगल यूज़ कर सकते हैं वहाँ सिंगल हो, और जहाँ पर ज़रूरत हो मल्टी स्लॉट की तो सिर्फ वहाँ पर मल्टी स्लॉट यूज़ करें। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे और इसी इक्लिप्स प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।